result is अगर साडे कोल G कोई abelian ग्रुप है और ਇਹਦਾ ऑर्डर p raised to power n है, means p is prime number, so it means that G is a p group, finite abelian p group, और A कोई एलिमेंट है जिहदा ऑर्डर मैक्सिमल ऑर्डर ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ जी दे सारे एलिमेंटां चों सब तो ज़्यादा ऑर्डर जिहड़ा है वो ए दा है, तो असी जी नूं लिख सकते हैं डायरैक्ट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड क्यू, डायरैक्ट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड क्यू, where A is a cyclic group generated by A, small a, and Q is the subgroup of a group G. So, इस थ्योरम का पर्पज क्या है? बेसिकली इस थ्योरम का पर्पज ये है कि किसी भी पी ग्रुप नूं असी साइकलिक ग्रुप दे विच किस ढंग दे नाल कन्वर्ट करीदा, ये साडा इस थ्योरम का पर्पज है, और it is applicable for a finite abelian group. So remember that it is applicable for a finite abelian group. Now in the given part, which is a order of G, so this is a p raised to power n, right? And what is A? So A is some element belongs to G whose order is यानी order of A, which is a maximum of all element x belongs to order of x such that x belongs to G. So असी already पढ़ चुके हैं, इन्हों असी exponent भी कहने हैं, exponent of group G, of group G, और A साडे कोल है cyclic group generated by A, right? Now we will prove this result with the help of mathematical induction. तो सब तो पहला असी n नू 1 चूज कर लीए, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ n ਨੂੰ 1 ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਇਹ p ਨੰਬਰ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, यानी प्राइम नंबर हो जाएगा, और सानू पता एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, तो G साडे कोल साइक्लिक हो जाएगा, सो दिस इज ए साइक्लिक ग्रुप. अगर साडे कोल G साइक्लिक हो गया और G दा ऑर्डर और साडे कोल A दा ऑर्डर ये सेम होएगा, ठीक है जी. G साइक्लिक हो गया तो G जिहड़ा है वो इहदे एलीमेंट दे नाल जनरेट करेगा, then it means G is generated by some element A, क्योंकि दोनों का ऑर्डर साडे कोल की होएगा, सेम होएगा. So this is order of G and order of A साडे कोल सेम है, किहदे बराबर आ, P दे बराबर आ, ठीक है जी. तो ये साडे कोल इहदे बराबर हो जाएगा, और इहदा मतलब साडे कोल की आ गया कि जिहड़ा G है वो अपने आप च ही साइक्लिक ग्रुप बन गया ऑफ जनरेटेड बाय ए एलिमेंट whose order is maximum among the element of G. तो G ਦੇ जिन्ने भी एलिमेंट आ उन्हां चों सब तो मैक्सिमम ऑर्डर होएगा. सो ये रिजल्ट साडे कोल ट्रू हो गया इन दिस केस. नाउ अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल ग्रुप whose order is less than n. सो अज्यूम कर लिए, अज्यूम that result is true for all
finite group, finite abelian group of order less than order of G। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਟਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅਬੈਲੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਹੋਣ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਘੱਟ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈਏ small b g ਦਾ or B is generated by this small b. So it is a cyclic group generated by B. ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ A ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ suppose there exists some b belongs to G। ਅਸੀਂ G ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈਏ such that ਇਹ ਜਿਹੜਾ B ਹੈ ਇਹ generated by A ਨੂੰ belong ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹ generated by A ਨੂੰ belong ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ such that ਆਰਡਰ ਆਫ B ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ P ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। P ਮੀਨਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਆਰਡਰ ਆਫ B ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ P ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ B ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਆਰਡਰ ਆਫ B P ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲੋ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਆਰਡਰ P ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। Now this is a B. Now A intersection B. A ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? Maximum order ਵਾਲਾ। So A intersection, so I write here A intersection B. It is a part of B as well as A। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो A ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ order of by Lagrange's theorem order of A intersection B ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ? ਆਰਡਰ ਆਫ B ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਔਰ B ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ this is this and B ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ generated by B, ਕੋਈ ਸਾਈਕਲਿਕ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। let B is generated by B ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਆਫ B ਤੇ ਆਰਡਰ ਆਫ small b ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਦਾ? P ਰੱਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ B ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਜਨਰੇਟਡ ਬਾਈ B ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਔਰ A ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਜਨਰੇਟਡ ਬਾਈ A ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ A ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਜਨਰੇਟਡ ਬਾਈ A ਹੈ। ਔਰ ਵਟ ਇਜ਼ A ਦਾ ਆਰਡਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? एक्सपोनेंट ऑफ G है, एक्सपोनेंट ऑफ G है। सो इनू याद रखना, एक्सपोनेंट ऑफ G है। नाउ व्हाट इज ऑर्डर ऑफ B? इट इज ए P प्राइम नंबर। देन वी हैव टू पॉसिबिलिटीज, जा तां इहदा ऑर्डर 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ P ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ P ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਆਰਡਰ ਆਫ A intersection B it should be equal to P। ਮੰਨ ਲਓ this is equal to P ਔਰ A intersection B ਸਬ ਗਰੁੱਪ B ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਰਡਰ ਆਫ B ਵੀ P ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਸੈੱਟ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ। A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ B ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ A ਤਾਂ B ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਏ।
सो विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि स्मॉल बी जिहड़ा है वो ए नूं नहीं बिलोंग करता पर बी नूं बिलोंग करता, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ਇਹਦਾ मतलब कि ਜਿਹੜਾ ऑर्डर ऑफ ए इंटरसैक्शन बी है ये 1 होएगा। ਇਹਦਾ मतलब ऑर्डर ऑफ ए इंटरसैक्शन बी 1 होएगा। तो ਇਹਦਾ मतलब ए इंटरसैक्शन बी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ कोई एलिमेंट है तो सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि ਇਹਦਾ ऑर्डर 1 हो गया। ਜੇ ਇਹਦਾ ऑर्डर 1 हो गया, so this consists only identity element, so remember that। तो हुण तक असी की फाइंड आउट कर लिया? असी फाइंड आउट कर लिया कि जिहड़ा साडे कोल A है, ए बेसिकली साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A है, ठीक है। B जिहड़ा है ये साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय B है, और ऑर्डर ऑफ B ਤੇ ऑर्डर ऑफ स्मॉल b ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਇਹ p ਨੰਬਰ ਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ऑर्डर ऑफ a ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ऑफ g ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ऑफ ऑर्डर ऑफ x such that x belongs to g। ਇਹ ਅਸੀਂ फाइंड आउट कर लिया। नाल दे नाल ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ फाइंड आउट कर लिया कि इन्हां दोनों की इंटरसैक्शन च जे कोई एलिमेंट है तो आइडेंटिटी एलिमेंट है। सो हुण तक आपां इत्थे तक पहुँच गए। अगर असी इत्थे तक पहुँच गए तो इत्थे तक असी इस चीज़ नूं जिहड़ा है वो फाइंड आउट कर लिया। हुण इस तो अगे चलिए, असी बी दे नाल क्वेश्चन ग्रुप डिफाइन करिए। तो मैं जी बार ले लिया और इट इज़ ए क्वेश्चन ग्रुप जी बाय बी। सो दिस इज़ ए क्वेश्चन ग्रुप जी बाय बी, राइट। सो दिस इज़ ए जी बाय बी, साडे कोल क्वेश्चन ग्रुप आ गया। जे क्वेश्चन ग्रुप आ गया तो ए जिहड़ा एलीमेंट है, ए एलीमेंट सानू पता जी दा एलीमेंट है। तो ए बार, वन थिंग इज़ क्लीयर, इनू आपां किद्दां लिख सकते हैं? बी इंटू ए दी फॉर्म च लिख सकते हैं। और ये एलीमेंट किहदा आ गया? ये जी बार दा एलीमेंट बन गया, क्योंकि ए एलीमेंट जी दा और ए एलीमेंट जिहड़ा है वो जी दा एलीमेंट आ। तो सानू पता ए बार जिहड़ा एलीमेंट आ वो जी बार दा एलीमेंट होएगा। असी ऑलरेडी क्वेश्चन ग्रुप च प्रूव किया सी कि ऑर्डर ऑफ ए बार, ऑर्डर ऑफ ए बार ये ऑर्डर ऑफ ए नू डिवाइड करता। ये असी हुणे ही प्रूव किया सी। ऑर्डर ऑफ ए बार ये ऑर्डर ऑफ ए नू डिवाइड करता। ਇਹਦਾ नाम मैं ए रख लिया। हुण मैं प्रूव करना चाहना कि ए बार दा ते ए दा ऑर्डर सेम है। सो दैट इज़ माई क्लेम। सो अवर क्लेम फर्स्ट स्टैप दे विच कि ऑर्डर ऑफ ए बार ते ऑर्डर ऑफ ए ये दोनों नंबर सेम है, ठीक है जी, ये दोनों वैल्यू सेम। हाफ पार्ट तब डायरैक्टली है, ऑर्डर ऑफ ए बार सानू पता डिवाइड ऑर्डर ऑफ ए। हुण असी हाफ पार्ट प्रूव करना चाहते हैं। हाफ पार्ट प्रूव करन लई मान लो मैं की करदा, ऑर्डर ऑफ ए दी कोई वैल्यूज ले लेना, मान लो टी ले लिया। सो इट मीनस ए रेज टू पावर टी साडे कोल आइडेंटिटी हो गई, दिस वैल्यूज ए रेज टू पावर टी विच इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। और मैं की प्रूव करना चाहना कि ऑर्डर ऑफ ए यानी कि टी जिहड़ा है यानी ऑर्डर ऑफ ए वो किन प्रूव करे? ऑर्डर ऑफ ए बार नू डिवाइड करे, ऑर्डर ऑफ ए बार नू डिवाइड करे। तो फिर मैं ऑर्डर ऑफ ए बार नू टी लाऊंगा। सो इट मीनस
A bar is equal to identity यानी E bar. So what it means from this, what is this? It is a BA raised to power T. It is BA raised to power T and this value is equal to B. What it means? जो multiplication of right को set करांगे तो A हो जाएगा BA power T which is equal to B, right? So ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, A ਦੀ ਪਾਵਰ T belongs to ਕੀ ਆ ਗਿਆ, B ਨੂੰ belong ਕਰ ਗਿਆ. So A ਦੀ ਪਾਵਰ T this belongs to B, ਠੀਕ ਹੈ. HA is equal to H, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ A ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ belong ਕਰ ਜਾਏਗਾ. ਜੇ ਇਹਨੂੰ belong ਕਰ ਗਿਆ ਸੋ T ਕੀ ਹੈ, T basically order of A bar ਹੈ. ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ A raised to power T ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਿਆ, B ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਿਆ. ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ A ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਨਰੇਟਡ ਬਾय small a. तो small a ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਵਰ V ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ A ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗੀ. ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਨਰੇਟਡ ਬਾय A. ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ A ਦੀ ਪਾਵਰ T ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ, A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਈ. ਔਰ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ. ਜੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਤਾਂ A ਦੀ ਪਾਵਰ T ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ. ਜੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਰਡਰ ਆਫ A ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਆਰਡਰ ਆਫ A ਇਹ ਸਾਡਾ T ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ. ਸੋ ਵਟ ਇਟ ਮੀਨਸ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਰਡਰ ਆਫ A ਇਟ ਡਿਵਾਈਡਸ T. ਸੋ ਵਟ ਇਟ ਮੀਨਸ, T ਕੀ ਆ, ਆਰਡਰ ਆਫ A ਬਾਰ. ਸੋ ਆਰਡਰ ਆਫ A ਡਿਵਾਈਡਸ ਆਰਡਰ ਆਫ A small a bar, small a bar. So this value ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ. ਯਾਨੀ ਆਰਡਰ ਆਫ A ਬਾਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ. ਇਸ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਰਡਰ ਆਫ A ਬਾਰ A ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਕੈਪੀਟਲ A ਦੇ ਨਾਲ. ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖਤਾ B. और A ਤੇ B ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦਈਏ तो what we get order of A ਤੇ order of A bar ਇਹ ਆਪਸ ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. So this is by A and B. यानी A ਤੇ B ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ तो मैं इस सिचुएशन ਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ. अगर मैं इस सिचुएशन च पुज गया तो हुण मैं इस गल नूं ध्यान नाल समझा कि मैं हुण तक की कीता. मैं हुण तक फाइंड आउट कीता कि साडे कोल A जिहड़ा है वो सी एक्सपोनेंट ऑफ G. सानू पता A जिहड़ा है वट इज़ A, असीं हुण तक की फाइंड आउट कीता A जिहड़ा सी कैपिटल A ਇਹ ਜਨਰੇਟਡ ਬਾਏ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਆਫ A ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਫ ਸੈਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਆਫ X ਐਂਡ X ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ G ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ. ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ. ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ B ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਨਰੇਟਡ ਬਾਏ B ਸੀ ਔਰ ਆਰਡਰ ਆਫ B ਤੇ ਆਰਡਰ ਆਫ ਸਮਾਲ b ਇਹ ਆਪਸ ਚ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ G ਬਾਰ ਇੱਕ ਕੁਇਸ਼ਨਟ ਗਰੁੱਪ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕੁਇਸ਼ਨਟ ਗਰੁੱਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, G ਬਾਇਆ B ਵਰਗਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ A ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਿਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਭਿਆ, G ਬਾਏ B ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਸੱਚ ਦੈਟ कि order of A bar and order of A ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ.
हुण मेरी अगली गल, जिहड़ा ए आ ये की आ, ऑर्डर ऑफ ए, ये जी दा एक्सपोनेंट है, जी दा एक्सपोनेंट है। और मैं हुण चाहना कि जिहड़ा ऑर्डर ऑफ ए बार है ये अपने ग्रुप का एक्सपोनेंट बन जाए। ठीक है जी, अवर क्लेम जिहड़ा ऑर्डर ऑफ ए बार है ये की बन जाए, ये बन जाए एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट ऑफ जी बाय बी, या जी बार, या इनू लिखांगे जी बाय बी का एक्सपोनेंट बन जाए। ठीक है जी, हुण एक्सपोनेंट कदों बनेगा, जे बाकी सारे ये एलीमेंटां चों ਇਹਦਾ ऑर्डर सब तो मैक्सिमम होएगा। हुण असीं मैक्सिमम ऑर्डर प्रूव करना चाहते हैं, तो मैं की करूँगा, मैं जी बार दे विचों कोई भी एलीमेंट ले लेना। सो जी बार चो एलीमेंट ले लिया, ये बेसिकली की है जी बाय बी वर्गा, यानी सी बार बेसिकली की आ गया, सी बार मेरे को आ गया बी इंटू सी वर्गा। ठीक है जी, रफ जिहा मैं आइडिया दे देना। मैं प्रूव की करना चाहना, ऑर्डर ऑफ ए बार इज एक्सपोनेंट ऑफ जी बार, तो तुसी की प्रूव करना चाहते, तुसी प्रूव करना चाहते ये सब तो वड्डा कदों होएगा, जदों ऑर्डर ऑफ सी बार हमेशा लैस दैन इक्वल टू हो जाए ऑर्डर ऑफ ए बार। जदों आ कंडीशन सैटिस्फाई हो जाए तो ये साडे कोल मैक्सीमम ਇਹਦੀ वैल्यूज हो जाएगी। ठीक है जी, इनू भी इस स्टैप नू भी आपां कंट्राडिक्शन नाल प्रूव करते हैं। तो कंट्राडिक्शन नाल प्रूव करन दे लई असी इस चीज़ नू आपां प्रूव करना चाहते हैं। नाउ आपां सी बार जिहड़ा एलीमेंट लिया, तो एक चीज़ तो सानू क्लीयर होगी, ऑर्डर ऑफ सी बार जिहड़ा कि ऑर्डर ऑफ सी नू डिवाइड करता, पता क्यों पता, क्योंकि क्यूशंट वाला ऑर्डर दूजे नू डिवाइड करता हुंदा। सो ਇਹਦਾ मतलब इत्थों की आया कि ऑर्डर ऑफ सी बार इट इज़ ऑलवेज लैस दैन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सी। ये क्लीयर हो गया। ठीक है जी, हुण ਇਹਦੇ ਤੋਂ ही आ गया कि ऑर्डर ऑफ सी is greater than equal to order of C which is greater than equal to order of C bar। this values आ गई। ठीक है, order of C is always greater than equal to order of C bar। ठीक, अच्छा जी, हुण मैं अगर उन्होंने मैक्सिमम प्रूव करना चाहना तो मैं की करदा, मैं मान लेना, कंट्राडिक्शन करना चाहना, मैं मान लेना, सपोज मान लो कि जिहड़ा ऑर्डर ऑफ सी बार है ये ग्रेटर दैन ऑर्डर ऑफ ए बार है। प्रूव मैं आ करना चाहना, इस नू प्रूव करन लई मैं इहदे ते कंट्राडिक्शन लगाऊंगा, तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर दैन ऑर्डर ऑफ ए बार। जे मैं आ मन्निया तो आ साडे कोल इहदे बराबर आ गया। और पिछले रिजल्ट विच असी की प्रूव किया सी, ऑर्डर ऑफ सी ग्रेटर दैन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सी बार विच इज़ ग्रेटर दैन ऑर्डर ऑफ ए बार। तो पिछले रिजल्ट दे विच असी प्रूव किया सी ए बार दा ऑर्डर ते ए दा ऑर्डर हमेशा सेम हुंदा। जे सेम हुंदा तो साडे कोल की आ गया, ऑर्डर ऑफ सी which is greater than order of A, which is again contradiction। why? क्योंकि order of A साडे कोल एक्सपोनेंट है जी दा, अगर एक्सपोनेंट आ तो मैक्सिमम ऑर्डर तो ऑर्डर ऑफ A दा होएगा, इस तो वड्डा तो किसी भी एलीमेंट का ऑर्डर हो ही नहीं सकता। सो दिस इज ए कंट्राडिक्शन। सो दिस इज विच इज contradiction, which is contradiction। so अगर एक contradiction हो गई तो contradiction हो गई, क्यों contradiction हुई, क्योंकि order of
ए जिहड़ा है ए एक्सपोनेंट ऑफ जी है, एक्सपोनेंट ऑफ जी है, यानी कि ਉਹਦੀ ऑर्डर दे ग्रुप दे ऑर्डर की मैक्सिमम वैल्यूज है, तो ये तो छोटा हो ही नहीं सकता, तो कंट्राडिक्शन हो गई। जे कंट्राडिक्शन हो गई तो साडी सपोजिशन रॉन्ग हो गई। असी की कह रहे सी कि ऑर्डर ऑफ सी बार ये तो बड़ा हो गया, ਇਹਦਾ मतलब ऑर्डर ऑफ सी बार ਜਿਹੜਾ है वो हमेशा लैस दैन इक्वल टू होएगा ऑर्डर ऑफ ए बार फॉर एवरी सी बार बिलोंग्स टू जी बार। जे होएगा तो व्हाट इज दिस, इट इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ ए बार is a maximum value of order of C bar such that this C bar belongs to G bar और G bar सानू पता किहदे बराबर है, G by B दे बराबर है। दिस वैल्यूज आ गई, ठीक है जी। सो असी इहदी वैल्यूज नू फाइंड आउट कर लिया। नाउ अगर असी इहदी ऑर्डर ऑफ ए आर यानी ਉਹਦਾ एक्सपोनेंट ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ क्यूशेंट ग्रुप की गल की सी ਉਹਦਾ एक्सपोनेंट भी फाइंड आउट कर लिया। जे कर लिया आल्सो ऑर्डर ऑफ जी बार ये कितना होएगा, ऑर्डर ऑफ जी बटा बी। सो दिस विल बी ऑर्डर ऑफ जी बटा ऑर्डर ऑफ बी। सो दिस वैल्यू इज ऑर्डर ऑफ जी ओवर ऑर्डर ऑफ बी। सो दिस वैल्यू इज लेस दैन ऑर्डर ऑफ जी। वाई? बिकॉज ऑर्डर ऑफ बी किहदे बराबर आ, पी प्राइम दे बराबर है, तो ये लेस हो जाएगा। तो लेस हो जाएगा तो इंडक्शन जी बार ते लग जाएगी। सो बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस, बाय induction hypothesis असी जी बार नू लिख सकते हैं जनरेटेड बाय डायरैक्ट प्रोडक्ट ऑफ जनरेटेड बाय ए बार इनटू इत्थे साडे कोल कोई सब ग्रुप होएगा, उस सब ग्रुप का नाम रखता टी। सो व्हाट इज दिस, दिस इज फॉर सम सब ग्रुप टी ऑफ जी बाय, दिस इज सम सब ग्रुप टी ऑफ जी बार। ठीक है जी, जी बार कौन है, जी बटा बी है, तो यदा सब ग्रुप जिहड़ा है वो असी लै लीए क्यू बटा बी लै लीए। दिस इज ए क्यू बटा बी सब ग्रुप ऑफ जी बाय बी दे बराबर से। ठीक है जी। नाउ रिजल्ट मैं किहदे लई प्रूव करना चाहना, रिजल्ट मैं प्रूव करना चाहना साडे कोल जी दे लई। प्रूव मैं हुण तक किहदे लई कर लिया, जी बार लई। कुछ पॉइंट नूं ध्यान नाल समझ लो जिहड़े कि अगे आपां नूं यूज करने पैणे। देखो क्यू बाय बी है, यदा मतलब बी जिहड़ा है ये क्यू दा सबसैट है। इनू याद रखना कि जिहड़ा साडे कोल क्यू बाय बी है ये उदा सबसैट है। दिस इज बी पार्ट ऑफ क्यू। अगर बी पार्ट ऑफ क्यू हो गया तो ये उदा सबसैट है। एक चीज दूजी गल इहदे विचों आपां रिजल्ट किहदे लई प्रूव करना चाहते, जी दे लई। ठीक है जी, जी लई रिजल्ट प्रूव करन लई एक तो मैनूं चाहिदा साइक्लिक ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय एलीमेंट ऑफ मैक्सिमम ऑर्डर यानी एक्सपोनेंट, वो ए होना चाहिए। दूजा डायरैक्ट प्रोडक्ट इहदा सब ग्रुप जी दा, तो जी दा सब ग्रुप कौन हो गया, क्यू हो गया, तो असी दूजा क्यू दे बराबर प्रूव करना चाहांगे। डायरैक्ट प्रोडक्ट प्रूव करन लई सानू तीन चीज़ां प्रूव करनियां पैणियां। एक तां ये दोनों नॉर्मल सब ग्रुप होण जी दे विच,
ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਖੁਦ ਫਾਈਨਾਈਟ ਅਬੈਲੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਗਰੁੱਪ ਉਹਦਾ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ A ਤੇ Q ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਤੀਜਾ, ਅਸੀਂ G ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕੀਏ ਜਨਰੇਟਡ ਬਾਈ A ਇਨਟੂ Q ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 2 ਤੇ 3 ਸਟੈਪਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ A, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ A। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਦੋਨੋਂ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਖਤਮ। ਕਿਉਂ ਖਤਮ? ਕਿਉਂਕਿ G ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਬੈਲੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ G ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖ ਸਕਾਂ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਪ੍ਰੂਵ ਫਸਟ, this is the proof step number 1. This is step number 1. So I write here. ठीक है जी। सो ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ because it is a lengthy and very tough result. So we will do by step. Now my aim is generated by this A. Basically ਕੀ ਹੈ? ਇਹ A ਆ, intersection by Q, it should be equal to identity. So remember that. ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। तो मैं ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, X ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੌਣ ਆ? A ਆ। ਸੋ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ Q ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਵਟ ਇਟ ਮੀਨਸ, X ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ X ਸਾਨੂੰ Q ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ। ਇਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ A जनरेटर साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A है, तो X ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮੈਂ A ਦੀ ਸਮ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ A ਦੀ ਪਾਵਰ I ਲਿਖ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਰ I ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ A ਦੀ ਪਾਵਰ I ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ X AQ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, A ਦੀ ਪਾਵਰ I Q ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ X ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਅਗਰ X ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ A ਦੀ ਪਾਵਰ I Q ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਹ ਐਲੀਮੈਂਟ Q ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ Q ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ X ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਸਮਝ ਆ ਕਿ BX ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ? Q ਬਾਏ B ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਸ਼ਨਡ ਗਰੁੱਪ ਆ। X ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਚਿਊਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ B ਇੰਟੂ A ਦੀ ਪਾਵਰ I ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ Q ਬਟਾ B ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। तो this value can be written as b raised to power I ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। तो ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ba ਪਾਵਰ I, it belongs to Q by B, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ba ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਬਾਰ, यानी Q B ਦਾ एलिमेंट। So it means again in the next step, so this will become A bar raised to power I, A bar raised to power I, it belongs to Q by B. So remember that it belongs to Q by B, A nu belong kar gaya। So this values, this is Q by B,
और क्यू बाय बी का आपां नाम की रखिया सी टी रखिया सी साइकलिक ग्रुप टी सब ग्रुप। सो ये इनू टी नू बिलोंग कर गया, चाहे इनू असीं इत्थों यूज़ कर लीए चाहे इनू इस ढंग दे नाल यूज़ कर लीए। ठीक है जी। सो वट इट मीनस कि जिहड़ा साडे कोल ए बार दी पावर आई है ये टी नू टी जिहड़ा सब ग्रुप सी जी बार का ਉਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਿਆ और ਤੁਹਾਨੂੰ इस गल की भी समझ होनी चाहिए ए बार की पावर आई ये हमेशा जनरेटेड बाय ए बार नू भी बिलोंग करेगा। ठीक है, क्योंकि इट इज़ जनरेटेड बाय दिस, तो ये इनू भी बिलोंग कर गया, ये इनू भी बिलोंग कर गया। ਇਹਦਾ मतलब ये इंटरसैक्शन नू भी बिलोंग कर जाएगा। So it belongs to A bar intersection this values. So it belongs to A bar power I. It belongs to केड़ा जी A bar intersection T, क्योंकि ये डायरैक्ट प्रोडक्ट सी। डायरैक्ट प्रोडक्ट की डेफिनेशन के मुताबिक इन्हां दी इंटरसैक्शन दे विच जे कोई एलीमेंट होएगा तो वो आइडेंटिटी होएगा यानी ई बार होएगा। सो वट वी गेट फ्रॉम दिस ए बार पावर आई इज इक्वल टू आइडेंटिटी बार यानी बी दे बराबर। सो वट इट मीनस ये साडे कोल की है, ये है बी इंटू ए दी पावर आई है और वट इज़ दिस ए किहदे बराबर आ, ए बी दे बराबर आ। सो वट इज़ दिस, इट मीनस ए दी पावर आई किनू बिलोंग कर गया, बी नू बिलोंग कर गया। ठीक है जी, ए दी पावर आई बी नू बिलोंग कर गया ना। अगर ए दी पावर आई ए जनरेटेड बाय ए नू बिलोंग तो करेगा और ए कौन आ, ए आ। ठीक है, सो आ ए नू भी बिलोंग कर गया, आ ए नू भी बिलोंग कर गया। सो बाय यूजिंग दिस रिजल्ट ए आई बिलोंग्स टू ए इंटरसैक्शन बी। सो वट इज़ दिस, इट इज़ ए आइडेंटिटी। जे याद होवे ए इंटरसैक्शन बी दे विच साडे कोल सिर्फ आइडेंटिटी एलीमेंट है। जे आइडेंटिटी एलीमेंट है तो तुसी इत्थे की प्रूव किया, ए दी पावर आई किहदे बराबर आ गया, आइडेंटिटी दे बराबर। सो ए दी पावर आई की सी, एक्स सी, एक्स किहदे बराबर आ गया, आइडेंटिटी दे बराबर। तो असी इंटरसैक्शन दे विचों एक्स लिया सी और प्रूव करता कि ये जड़ा साडे कोल एक्स है ये आइडेंटिटी दे बराबर आ गया। जे आइडेंटिटी दे बराबर आ गया सो वट वी गेट ए इंटरसैक्शन क्यू इट कंसिस्टिंग ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट। सो विच प्रूव आवर रिजल्ट। सो रिमेंबर दैट इट इज़ माई फर्स्ट पार्ट। नाउ सैकेंड पार्ट असी स्टैप नंबर जिहड़ा 2 सी वो की सी, सैकेंड पार्ट दे विच साडे कोल सी कि असी प्रूव करना G इज़ इक्वल टू A इंटू क्यू। इस फॉर्म च असी प्रूव करना सी। तो पहला साडा रिजल्ट हो गया, हुण दूजा असी इहदे विचों एलीमेंट लईए, उहनूं प्रोडक्ट ऑफ दो एलीमेंट च लिख सकीए जिहड़ा एक A दा एलीमेंट होवे एक क्यू दा एलीमेंट होवे। सो आई टेक सम एलीमेंट X विच बिलोंग्स टू G। तो मैं X नूं G दे विचों एलीमेंट नूं लै लिया। तो सानू पता एक्स बार ए किनू बिलोंग करेगा, ए करेगा एक्स बार जी बार नू बिलोंग करेगा। ठीक है, जी बार किहदे बराबर आ, जी बटा बी दे बराबर आ। और अगर ये जी बटा बी दे बराबर है तो जी दे बी नू असी ऑलरेडी लिख चुके हैं जनरेटेड बाय ए बार इंटू टी दे बराबर, राइट। सो वट इज़ टी, टी तुहानू पता होना चाहिए कि एक क्यू बटा
बी सब ग्रुप सी। ठीक है जी, ਇਹਦਾ मतलब एक्स बार ਨੂੰ इस फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। टी याद रखना वाई बार क्यू बाय बी फॉर्म च होएगा। इट मीन्स दिस एक्स बार विच इज इक्वल टू, हुण एलीमेंट लईए ए बार नाल जिहड़ा जनरेट करता, तो किदां दा होएगा ए बार पावर लै लीए, हुण जे लै लीए, पहला आपां आई लई सी, हुण जे लै लीए। दूजा एलीमेंट किहदा लैना सी टी दा, ਉਹਦਾ नाम लै लिया सी वाई बार, और दिस वाई बार दिस इज ए एलीमेंट ऑफ क्यू बाय बी, यानी बी वाई वर्गा एलीमेंट होएगा। तो असी इनू इस ढंग दे नाल रिप्रजेंट करता। जदों रिप्रजेंट किया, नाउ वट वी गेट, सो वी गेट हेयर इट इज ए b into x, b into x, and here it is a b into a power j into y, this values आ गई। हुण आपां रिजल्ट यूज करिए, एच ए इज इक्वल टू एच बी इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, यानी असी आ रिजल्ट यूज करन लगे एच ए is equal to HB if and only if AB inverse belongs to H। So इस रिजल्ट दे नाल X फिर क्या आया, ਇਹਦਾ इनवर्स AJ Y सारे दा इनवर्स, it belongs to B। What it means? It means XY इनवर्स एक एलिमेंट हो गया, दूजा आ गया ए दी पावर माइनस जे, ये किनू बिलोंग कर गया, ये बी नू बिलोंग कर गया। ठीक है जी, सो इट बिलोंग्स टू बी। तो असी इनू इस फॉर्म दे विच लै लिया। हुण क्यू बाय बी नू ध्यान नाल देखो, एक क्यूशेंट ग्रुप कदों एग्जिस्ट करदा, जदों बी जिहड़ा है वो क्यू दा सबसैट होवे। इट मीनस आ जिहड़ी एलीमेंट है, ये एलीमेंट किनू बिलोंग कर गया, ये क्यू नू बिलोंग कर गया। दिस बिलोंग्स टू क्यू। इफ दिस बिलोंग्स टू क्यू, सो आई राइट एक्स एज, आई राइट दिस वैल्यूज, इनू मैं लिख सकदा जे क्यू नू बिलोंग कर गया, आई राइट दिस वैल्यूज एज एक्स which is equal to AJ this values into Z। so इनू असी X दी वैल्यूज जिहड़ी है X इनू इस फॉर्म दे विच चला गया। ठीक है जी, सो अगर इस फॉर्म दे विच चला गया एक्स वाई इनवर्स AZ belongs to B, B is element belongs to Z। तो साडे कोल दिस X आ ये वैल्यू क्यू दा एलीमेंट हो गया। तो इत्थे मैं इनू रफ जिहा समझाने की कोशिश करदा, एक्स वाई इनवर्स इंटू ए माइनस जे, ये क्यू दा एलीमेंट हो गया। तो इत्थे मैं इनू जेड लिख ला, बिकॉज इट बिलोंग्स टू क्यू। इफ इट बिलोंग्स टू क्यू, तो जिहड़ा मेरे कोल एक्स है, ये साडे कोल बन गया ए दी पावर जेड दिस वैल्यूज। अगर पहला लिखना पहला लिख लो, जा इनू प्री मल्टीप्लाई करना तो प्री कर लो। सो इदा कर लिए, पहला आएगा इत्थे एक्स, पहला लिखा जेड, फिर आ जाएगा ए जे, फिर आ जाएगा साडे कोल वाई दिस वैल्यूज। तो इनू आपां लिखांगे ए जे, आ पिछे लै जाइए इंटू जेड डैश लिखिए, तो दिस वैल्यू विल बिकम जेड डैश वाई। ठीक है जी, जेड डैश तुहानू पता क्यू दा एलीमेंट। हुण वाई बारे देखो, वाई किहदा एलीमेंट सी, जे वाई नू तुसी चैक करोगे तो वाई क्यू दा एलीमेंट है, बिकॉज वाई बार बिलोंग्स टू क्यू बाय बी।
तो y भी Q ਦਾ एलिमेंट, z डैश भी Q ਦਾ एलिमेंट, तो दिस प्रोडक्ट इज एलिमेंट बिलोंग्स टू Q, तो x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ AJ into Z, where Z is element belongs to Q, this values. So this x can be written as in this way by using this result. This is a AJ, है ना, AJ into Z. So Z ਜਿਹੜਾ एलिमेंट है ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਿਆ, Q ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਿਆ। तो ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ फर्स्ट एलिमेंट है it belongs to generated by A, ठीक है जी। और ਜਿਹੜਾ सैकेंड एलिमेंट है it belongs to Q। ਇਹਦਾ मतलब G ਜਿਹੜਾ है ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕੇ ਹਾਂ जनरेटेड बाय A into Q फॉर्म च। इंटरसैक्शन भी एम्प्टी है और असी इनू A Q फॉर्म दे विच भी लिख लिया। अगर A Q फॉर्म दे विच भी लिख लिया, सो वट वी गेट G इज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ A and Q, so which prove our result. So this is for the given case कि इफ जे साडे कोल इस तरह का एलिमेंट है तो साडे कोल उस कंडीशन नू सैटिस्फाई करेगा। हुण केस नंबर 2, केस नंबर 2 केड़ा सी, केस नंबर 2, दिस इज वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो केस नंबर 2 च की सी कि सपोज there is no element, उत्थे दा आपां चूज कर लिया सी कि एक एलिमेंट B होएगा G दे विच जेड़ा कि B जेड़ा है A जनरेटेड बाय A नू बिलोंग नहीं करेगा, A नू बिलोंग नहीं करेगा, सच दैट ऑर्डर ऑफ B इज इक्वल टू P दे बराबर, ठीक है जी। ये साडे कोल सी। हुण इत्थे पहले केस च की सी कि एक एलीमेंट एग्जिस्ट कर रहा जिहड़ा इस कंडीशन नू सैटिस्फाई कर रहा। हुण अगले जिहड़ा दूजा केस इदां भी तो हो ही सकदा कि इदां दा कोई एलीमेंट एग्जिस्ट ही ना करे, ठीक है जी। सो इदां दा कोई भी एलीमेंट एग्जिस्ट ही ना करे। सो इन दिस केस अगर इदां दा एलीमेंट कोई एग्जिस्ट नहीं करता तो उस केस दे विच G जिहड़ा है वो A दे बराबर हो जाएगा। उस केस दे विच G जिहड़ा है वो A दे बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो अगर साडे कोल देयर इज नो एलिमेंट B बिलोंग्स टू G सच दैट B does not belongs to A, if it does not satisfy this condition, in that case G is equal to A. So in the both cases we write the G is as a direct product of A and this Q. So what is Q? Q is a subgroup of a group G. So which prove our result.